Hello students. Now today we are discuss about Unit 3 data structure under session 2 describe list, linked list and introduction to tree. Coming to the topic linked list. It is commonly used linear data structure which consists of a group of node in a sequence. What is node? Node क्या है? Two or more fields जिसमें दो और दो से अधिक fields बनी होती है. नोड अरेंज इन अ सीक्वेंस. नोड सीक्वेंस में अरेंज होता है विच हैव सम डाटा एंड एड्रेस वेयर वी सेंड द डाटा एंड वेयर वी गेट द डाटा. वेयर वी आर सेंडिंग, हम किस तरह का डाटा उसमें सेंड कर रहे हैं. ईच नोड होल्ड इट्स ओन डाटा एंड एड्रेस टू द नेक्स्ट नोड. प्रत्येक नोड का अपना डाटा और एड्रेस होता है जो हम नेक्स्ट अगले नोड में डाटा को के एड्रेस को स्टोरेज देख सकते हैं. अगर आपको डाटा का एड्रेस पता नहीं है तो आप उसकी लोकेशन का पता कर सकते हैं. इफ़ यू नो द इंफॉर्मेशन देन यू सेंड अदर्स. लिंक लिस्ट आर यूज टू क्रिएट ट्री एंड ग्राफ्स. लिंक लिस्ट का से हम ट्री और ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं. Advantages and disadvantages and application of linked list. First we discuss about advantages. They are dynamic in nature which allocate the memory when required. Yes, obviously we are saying it's a dynamic in nature. Why? क्यों हम इसे कहेंगे कि dynamic nature होता है इसका? Because whenever they are memory required, they only locate. We don't know where the memory. They just locate the memory, removing the space. When we delete the elements in the space, also delete it. It makes the memory free, and obviously the space become free. इसलिए हम इसको dynamic nature कह सकते हैं. Insertion and deletion can be executed. The most important advantages is it reduces the access time. Now disadvantages, the memory is wasted as pointed required extra memory for a storage. Why the memory is wasted in the linked list? Because we have pointed extra memory storage. Why we need pointed? If you don't have address of the next node, how to send the data for the next node? That's we required the pointed for the extra memory. Each node has a access sequentially. Reverse traversing is difficult. Now come application of the linked list. Linked list is used to implement stacks, queue, graphs and etc. Linked lets you insert elements at the beginning and the end of the list. Linked list में elements या तो शुरू में insert होते हैं या फिर last में. In linked we don't need to know how the size in advance. Linked में size की आवश्यकता नहीं होती है. Types of linked list: single linked list, double linked list, circular linked list. First, single linked list. It contain node which have data and address part in which points to the next node. The operation we can perform on single linked list. सिंगल लिंक लिस्ट में ओनली एक डाटा होता है और एक एड्रेस होता है. दे विल बी देयर इन अ नोड. दैट्स यू हैव to be remember. Node consists of the data and address of the next node. That's we call the single linked list. For example, first node में data and the next में हम उसका address देख सकते हैं. Next one is a double linked list. Double linked list, here each node contain a data part and the two address, one of the previous node and the one of the next node. इसमें 3 fields होती है. वन इज़ हैविंग डाटा एंड 2 अदर्स इज़ हैविंग एड्रेस. फर्स्ट जो इसमें 3 fields बनी होती है, एक डाटा को हैविंग करता है और अदर वन इज़ द एड्रेस एंड नेक्स्ट वन इज़ द एड्रेस. व्हाट वी कॉल द 2 एड्रेस. हम 2 एड्रेस को क्या कहेंगे? वी कॉल देयर इज़ द वन फ्रॉम द प्रीवियस नोड एंड वन फ्रॉम द नेक्स्ट नोड. प्रीवियस एड्रेस एंड नेक्स्ट एड्रेस स्टोर्ड द data will be present. Data of the particular node and the data of the previous node are the address of the
next node that we call the double linked list. डबल लिंकर लिस्ट में 2 वे डायरेक्शन में चलता है, इसलिए इसे डबल लिंकर लिस्ट कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज अ सर्कुलर लिंकर लिस्ट. इन सर्कुलर लिंकर लिस्ट द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट होल्ड द एड्रेस of the first node, hence performing a circular chain. It means the last is connected to the first, hence performing the circular chain. Only the limited number of the node are present here. So it's 3 types of the different linker list: single, double and circular. Operation performed on linker list. First is the creation, insertion, deletion, concatations, traversing. First is the creation. The operation is used to create node in a linker list. लिंकर लिस्ट में नोड क्रिएट करने के लिए क्रिएशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. किस टाइप से करते हैं? स्ट्रक नोड करके, स्ट्रक्चर बना करके हम इसमें नोड का एक पॉइंटेड बनाते हैं. हम इसमें लिखा P, और न्यू नोड क्रिएट करने के लिए हमने इसमें लिखा P इज इक्वल टू न्यू नोड. इससे क्या हुआ कि न्यू नोड मेमोरी में क्रिएट होगा और इससे नोड के अंदर 2 फील्ड होगी, एक डाटा और एक लिंक्ड. क्रिएशन ऑपरेशन हमने क्या किया कि न्यू नोड क्रिएट किया, मेमोरी में स्पेस होगा तो आपका जो एड्रेस है जो भी है, फॉर एग्जांपल अगर मेमोरी में 100 है तो वो एड्रेस आपका 100 हो जाएगा. अगर आपके कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस नहीं होगा तो P इज इक्वल टू नल हो जाएगा. तो इस तरह से मेमोरी P इज इक्वल टू नल, और अगर होगा स्पेस तो P इज इक्वल टू जो भी आपका एड्रेस होगा 100 फॉर एग्जांपल, तो आपका ये इस तरह से क्रिएशन ऑपरेशन क्रिएट किया जाता है. नेक्स्ट इज द इंसर्शन. Insertion, the operation is used to insert a new node in the linker list. A new node may be inserted. लिंकर लिस्ट में न्यू नोड को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट ऑपरेशन का यूज़ होता है. 2 नोड पहले से ही है, इसमें अगर एक और नोड इंसर्ट करना है तो हम इस इंसर्शन ऑपरेशन का यूज़ करते हैं. तो इसके 3 वेज है इंसर्ट करने के: एट द बिगिनिंग ऑफ द इंसर्ट लिस्ट, एट द एंड ऑफ द लिंकर लिस्ट, एट द स्पेसिफाइड ऑपरेशन इन द लिंकर लिस्ट. ये 3 वे है, या तो बिगिनिंग लिंकर लिस्ट में इंसर्ट होएगा या एंड में या स्पेसिफाई पोजीशन पे इंसर्ट किया जा सकता है. द नेक्स्ट वन इज द डिलीशन ऑपरेशन. डिलीशन लिंकर लिस्ट में किसी भी ऑपरेशन को डिलीट करना हो तो डिलीशन ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है. इसमें इसके भी 3 वे है: फर्स्ट नोड या फिर लास्ट नोड में इंसर्ट किया जाता है या स्पेसिफाई नोड पे इंसर्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज द कॉन्केटेशन ऑपरेशन. दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन 2 लिंक्ड लिस्ट टू क्रिएट अ सिंपल लिंकर लिस्ट. कंबाइन करने के लिए 2 लिंकर लिस्ट को एक और न्यू लिंकर लिस्ट बनाना, उसको कंबाइन करना, तो वो कॉन्केटेशन लिंकर लिस्ट कहलाता है. ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन. दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू विजिट और डिस्प्ले ईच एलिमेंट ऑफ द लिंकर लिस्ट एग्जैक्टली वंस. इस लिंकर लिस्ट में जितनी भी वैल्यू है उनका एक बार विजिट करवाने को ट्रैवर्सिंग कहा जाता है. जो भी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल इसमें वैल्यू स्टोर है, स्टार्ट किया, वैल्यू स्टोर है 2, 3, नेक्स्ट नोड में 4, लास्ट में नल. जो 2, 3, 4 इसका एक बारी भी जब विजिट हो गया तो ये विजिट ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन कहलाता है. इंट्रोडक्शन टू ट्री इन डाटा स्ट्रक्चर. वाई वी यूज़ इन अ कंप्यूटर साइंस इज द ट्री. ट्री का यूज़ क्यों होता है इन कंप्यूटर साइंस में? टू रिप्रेजेंट अलजेब्रा फार्मूलाज, एंड अलजेब्रिक फार्मूला के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए, सर्चिंग इन एफिशिएंट इन लार्ज डायनेमिक लिस्ट, इन अ लार्ज डायनेमिक लिस्ट. एंड नेक्स्ट वन इज अ फॉर एनकोडिंग एल्गोरिथम, एनकोडिंग एल्गोरिथम के लिए. नाउ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्री. A tree consists of finite set of elements is called node. Finite set of elements is called node.
tree consists of a finite of the directed lines called branches. डायरेक्टेड जो लाइंस होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्रांचेस. ब्रांचेस इज डायरेक्टेड टूवर्ड द नोड इन अ डिग्री ब्रांच. ब्रांच इज डायरेक्टेड द वे फ्रॉम द नोड आउट ऑफ द डिग्री. नोड्स में जो डायरेक्टेड लाइन होती है वो ब्रांचेस होती है, नोड को कनेक्ट करती है. ठीक है. एंड सिंपल ट्री लुक्स लाइक. ट्री का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे. फर्स्ट नोड में ए, देन बी, फिर और ब्रांचेस बनाई बी की सी एंड डी. ए की ब्रांच बनाई हमने ई नोड, फिर नेक्स्ट एफ नोड. एफ नोड में हमने ट्री और नोड्स नेक्स्ट जी एच एंड आई. फर्स्ट कॉम लेवल 1, next is the level first level 0, then next level 1 and next level 2. It is a simple tree. General presentation of a tree. Form A is the parents. A इसमें parents है. किसके parents है? B, E and F. B, E and F के parents है. B is the parents of C and D. बी पेरेंट्स है सी और डी के. एंड एफ पेरेंट्स है जी एच एंड आई. तो पेरेंट्स कौन हुए इसमें? ए, बी और एफ. ए, बी और एफ है पेरेंट्स. ए के चाइल्ड थे बी, ई, एफ. ए के चाइल्ड कौन थे? बी, ई, एफ. और बी के चाइल्ड है सी एंड डी और एफ के चाइल्ड है जी एच आई. तो पेरेंट्स से ए, बी, एफ और चाइल्ड में कौन कौन आएंगे? चाइल्ड में बी चाइल्ड, ई बी चाइल्ड, एफ बी चाइल्ड, सी इज ऑल्सो चाइल्ड, डी, जी एच आई इज ऑल्सो चाइल्ड. नेक्स्ट वन इज अ सिबलिंग. हु इज अ सिबलिंग नोड्स इन द ट्री. सिबलिंग का मीनिंग इज अ हु इज अ सेम पेरेंट्स, हैविंग अ सेम पेरेंट्स. सेम पेरेंट्स किस किस के? यहाँ पे सेम पेरेंट्स बी, ई एंड एफ is the same parents of A. C and D is having same parents of C, D having the same parents of B. G, H, I is the same parents of F. तो सिबलिंग हुए B, E, F is a sibling, C and D is a sibling, G, H, I is a sibling. Now next is the leaves. Leaves that nodes does not having a child. जिस नोड के कोई चाइल्ड हैविंग नहीं है. सी डी के आगे कोई नोड्स नहीं बने हैं, जी एच आई के भी नहीं है, दैट इज अ लीव्स. सी डी, जी एच आई एंड ई इज ऑल्सो लीव्स. इंटरनल नोड्स. इंटरनल नोड्स मीनिंग लेवल 0 एंड लेवल 2 के बिटवीन में जो भी आए, ठीक है, वो इंटरनल नोड्स कहलाते हैं. देयर इज अ 2 इंटरनल नोड्स B and F. They having as well as a child and as well as a parents. B is parents is A and C D is child is B, and F is a parent. F child is C H I and parents is A. This is the between level. So B and F is also the internal nodes. It's a simple structure of the tree terminologies. And thank you and have a nice day.